آداب ناظرین، INN کی خبروں میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں شوکت علی صوفی۔ پیش ہیں آج دن بھر کی کچھ اہم خبریں۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ 100 سال کی سب سے بڑی مہاماری سے بھارت کی لڑائی اب تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ محنت ہی ہمارا ایک راستہ ہے اور جیت صرف ایک متبادل ہے۔ ہم 130 کروڑ بھارت کے لوگ اپنی کوششوں سے کرونا سے جیت کر ضرور نکلیں گے۔ دیش میں کرونا کے کیسز میں بڑا اچھال دیکھنے کو ملا ہے۔ کرونا کے روزانہ معاملے 2.5 لاکھ کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ وہیں دیش میں کرونا کے کل ایکٹیو کیسز 11 لاکھ کے پار پہنچ گئے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کرونا کے نئے کیسز میں 27% کا اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ایک دن میں اموات کا آنکڑا 38,013 تک پہنچ گیا ہے۔ پازیٹیو ریٹ 1% سے اوپر ہے۔ نئے کیس اور اموات کا آنکڑا جو سامنے آیا ہے وہ بتا رہا ہے کہ کرونا کا وائرس کتنی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ کرونا کی تیسری لہر کی بات کریں تو ہر گزرتے دن کے ساتھ نئے ریکارڈ بن رہے ہیں۔ کرونا کے بڑھتے خطرے کی وجہ سے پردھان منتری نریندر مودی نے آج صوبوں کے مکھیہ منتریوں کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ شام کے 4:30 بجے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پردھان منتری نے سبھی صوبوں کے مکھیہ منتریوں کے ساتھ چرچا کی۔ انہوں نے کہا کہ 100 سال کی سب سے بڑی مہاماری کی لڑائی اب تیسرے سال میں داخل ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا صرف ایک راستہ ہے اور جیت صرف ایک متبادل۔ ہم 130 کروڑ بھارت کے لوگ اپنی کوششوں سے کرونا سے جیت کر ضرور نکلیں گے۔ پارلیمانی امور کی مرکزی کمیٹی نے پارلیمنٹ کے بجٹ سیشن کا پہلا مرحلہ 13 جنوری سے 11 فروری اور دوسرا مرحلہ 14 مارچ سے 8 اپریل تک بلانے کی سفارش کی ہے۔ اجلاس کا آغاز صدر رام ناتھ کووند کے دونوں ایوانوں کے ارکان سے خطاب کے ساتھ ہوگا۔ اجلاس 8 اپریل تک جاری رہے گا۔ ذرائع نے یہ خبر کابینی کمیٹی برائے پارلیمانی امور کے حوالے سے دی ہے۔ 12 فروری سے 1 ماہ کی چھٹی ہوگی اور دوسرے مرحلہ 14 مارچ سے شروع ہوگا جو 8 اپریل تک چلے گا۔ اس دوران UP سمیت 5 ریاستوں کے لیے انتخابات ہوں گے اور نتائج آئیں گے۔ اس کا اثر دوسرے مرحلے میں نظر آئے گا۔ پارلیمنٹ ہاؤس سے متعلق ذرائع کا کہنا ہے کہ تیسری لہر کے دوران گزشتہ 1 ماہ کے دوران پارلیمنٹ ہاؤس کے 718 ملازمین کورونا سے متاثر ہوئے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر پچھلے 2 ہفتوں کے دوران متاثر ہوئے ہیں۔ 9 جنوری تک تقریباً 400 اہلکار کرونا سے متاثر تھے، لیکن بدھ کو یہ تعداد 700 سے تجاوز کر گئی۔ صرف پچھلے 3 دنوں میں ان اعداد و شمار میں تقریباً 43% کا اضافہ ہوا ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے جمعہ کو سنکرانتی پر تلنگانہ کے عوام کو مبارکباد دی۔ یہ سورج کے مکر راسی میں داخل ہونے کا اچھا وقت ہے اور تمام لوگوں کو خوشی اور خوشحالی سے نوازے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ زراعت کے شعبے میں فصلوں کی سرمایہ کاری میں مدد، کسانوں کی فلاح و بہبود کی مختلف اسکیموں اور ریاست میں آبپاشی کے شعبوں کو ترقی دینے کے اقدامات کی مدد سے ایک مستقل دیوار قائم کی گئی ہے۔ تلنگانہ میں لاک ڈاؤن اور نائٹ کرفیو کا انحصار کووڈ-19 کے کیسز کی تعداد اور صحت کے حکام کے مشورے پر ہوگا۔ میونسپل ایڈمنسٹریشن اور شہری ترقی کے وزیر KT راما راؤ نے ٹویٹر پر اپنے ایک نیٹیزن سے بات چیت کرتے ہوئے کہا۔ وزیر نے ایک ایسے نیٹیزن کو جواب دیا جس نے راؤ سے لاک ڈاؤن یا نائٹ کرفیو یا کسی اور چیز پر سوال کیا جس کے بارے میں ریاستی حکومت سوچ رہی ہے، کیونکہ ریاست میں معاملات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ وزیر نے کہا کہ سب معاملات کی تعداد پر منحصر ہوگا اور صحت کے ایک اہلکار حکومت کو کس طرح مشورہ دیتے ہیں۔ معلوم ہوا ہے کہ تلنگانہ حکومت نے کووڈ-19 کے معاملات میں اضافے کے پیش نظر 8 سے 16 جنوری تک تمام تعلیمی اداروں میں تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ اسکولوں اور کالجوں کے دوبارہ کھلنے پر بھی غیر یقینی صورتحال ہے، کیونکہ کیسز پچھلے ہفتے کے مقابلے میں دوگنا ہو گئے ہیں۔ جمعرات کو تلنگانہ میں کووڈ-19 کے 2707 کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد ریاست میں ایکٹیو کیسز 20,462 ہو گئے۔ نئے کیسوں میں سے 1,328 گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن سے ہے، 248 میڈچل سے، ملکاج گیری سے 202، رنگا ریڈی سے اور باقی ریاست کے دیگر اضلاع سے بھی کافی کیسز کی رپورٹ ہوئی ہے۔
संक्रांति की तकरीबात जुमा को चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी की रिहाइशगाह ताड़ेपल्ली में मुनक़्क़द की गई। तकरीब में सीएम वाई एस जगन मोहन रेड्डी और उनकी अहलिया भारती ने शिरकत की, जिन्होंने रिवायती लिबास में शिरकत की। वज़राए, अवामी नुमाइंदे और अफसरान वज़ीर आला के हमरा थे। दरियासना तकरीबात का इनेकाद इस तरह किया गया कि तेलुगु सखावत और रिवायत की नुमाइश की गई। तकरीबात के दौरान चीफ मिनिस्टर जगन ने कुछ देर बच्चों के साथ बातचीत की और तेलुगु अवाम को नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि त्यौहार हमारी सकाफत और रिवायत की अलामत है और उम्मीद जाहिर की कि हर घर में खुशी होगी। चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने तेलुगु अवाम को नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि संक्रांति वो त्यौहार है जो हमारी सकाफती रिवायात की अलामत है, वो एहतराम जो हम अपने गांव, ज़राअत और किसानों को देते हैं। चीफ मिनिस्टर ने उम्मीद जाहिर की कि भोगी, मकर संक्रांति और कन्नुमा का जोश पूरी दुनिया के लोगों के लिए खुशियां लाए और सबको संक्रांति की मुबारकबाद दी। भोगी का त्यौहार पूरी रियासत में लोगों, मशहूर शख्सियात और सियासतदानों के साथ अलाव जलाकर और नेक ख्वाहिशात के साथ मनाया जा रहा है। बजरा और YSRCP MLA अपनी रिहाइश गांव पर अवाम के साथ तकरीबात में डूबे हुए हैं। आवाहयामि आसनं समर्पयामि ओम भूस्वरूपिण्ये कवे नमः हरिद्रादिचूर्णं समर्पयामि कुंकुमादि परिमल द्रव्याणि समर्पयामि ओम भूस्वरूपिण्ये कवे नमः हरिद्रादिचूर्णं कुंकुमादि परिमल द्रव्याणि समर्पयामि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम भूस्वरूपिण्ये कवे नमः पुष्पमालान् समर्पयामि ओम आयने देवरायने दूर्वारोहन्त पुष्पिनीः हृदयस्य पुण्डरीकानि समुद्रस्य गृहायिमे ओम भूस्वरूपिण्ये कवे नमः నైవేద్యం సమర్పయామి పాడి పంటల్ని భగవత్ స్వరూపంగా ఎక్కడైతే పూజిస్తారో ఆ ప్రాంతం సుభిక్షంగా ఉంటుందని పెద్దలు చెప్పినట్టుగా మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గోసేవ చేస్తున్నారు. దీపం సందర్శయామి గోవులను పూజిస్తే సకల దేవతలను పూజించినంతో సమానమని మన పెద్దలు ఎప్పుడూ చెబుతుంటారు. సతీ సమేతంగా ఆయన గోసేవను చేస్తున్నారు. బ్రహ్మణోత్తముల మంత్రుల अभिप्रदग्नागहि श्रियामः परिपादया सम्राजञ्च विराजञ्च विश्रीर्याचन गृहे लक्ष्मीरास्तस्य హలో, ఈ అద్భుతమైన నాట్యాన్ని ప్రదర్శించిన చిన్నారులు ఒంగోలు శ్రీ నళినిప్రియ కూచిపూడి నృత్య నికేతన విద్యార్థులు, గురువులు శ్రీమతి శివకుమారి గారి శిష్య బృందం. గోదాదేవి రోజుకొక పాసురం చొప్పున 30 రోజులు 30 పాసురాలు చెబుతుంది. అదే తిరుప్పావేగా ధర్మమాసంలో చాలా మంది వైష్ణవ భక్తులు వ్రతాన్ని ఆచరిస్తూ ఉంటారు. దక్షిణాయన वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने अपनी क़ियामगाह वाक़ श्रीनगर कॉलोनी में भोगी त्यौहार में हिस्सा लेने के बाद रियासत की आवाम को भोगी और संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद पेश करते हुए अवाम उन्नास से अपील की कि वो आज और कल मुनक़्क़दा संक्रांति त्यौहार में करुणा के रहनुमाना ख़ुतूत पर सख्ती के साथ अमल करते हुए त्यौहार मनाएं। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद तेलंगाना तहरीक पर मबनी हर त्यौहार नहायत ही जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। जारिया साल कोरोना की तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए काइट एंड स्वीट फेस्टिवल का इनेकाद अमल में नहीं लाया जा रहा है। दूसरी जानिब भोगी और संक्रांति त्यौहार के मौके पर से रोज़ा संक्रांति शोबे का शिल्पारामम में इनेकाद अमल में लाते हुए तेलंगाना तहजीब को उजागर किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए भोगी त्यौहार पर रियासत के लोगों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि संक्रांति वो त्यौहार है जो हमारी सकाफती रिवायात की अलामत है, वो एहतराम जो हम अपने गांव, ज़राअत और किसानों को देते हैं। चीफ मिनिस्टर ने उम्मीद जाहिर की कि भोगी, मकर संक्रांति और कन्नुमा का जोश पूरी दुनिया के लोगों के लिए खुशियां लाए और सबको संक्रांति की मुबारकबाद उन्होंने दी।
सीपीआई के सीनियर कायद नारायणा ने अपने आबाई मुकाम चित्तूर में भोगी और संक्रांति त्यौहार में हिस्सा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए दोनों तेलुगु रियासतों की अवाम को संक्रांति त्यौहार की मुबारकबाद पेश करते हुए बताया कि मुल्क भर में भोगी और संक्रांति त्यौहार आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। उन्होंने अवामुन्नास से अपील की कि वो कोरोना के रहनुमायाना खतूत पर सख्ती के साथ अमल करते हुए त्यौहार मनाएं। సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు దాదాపు 40 ఏళ్ళ తర్వాత మా స్వగ్రామం ఐనంబాకం వచ్చి ఈ భోగి మంటలు వేసి తెల్లవారుజాము నుంచి ఆనందోత్సాహంతో ఉన్నాం. ఈ సందర్భంగానే భారతదేశంలో మతోన్మాదం పెంచిపోతుంది. మనల్ని విద్వేషాలు పెంచుకుంటున్నారు. అలాంటి సమాజం ఉండకూడదు. ఒక విధంగా మత సామరస్యం ఉండాల్సిందే. ఈ మత సామరస్యం ద్వారా భారతదేశాన్ని ప్రపంచ అవకాశం ఉండాలా. ఆ పద్ధతిలో రాజకీయ వ్యవస్థలు మారాలి. ఈ సందర్భంగా ఈ సంక్రాంతి భోగి సందర్భంగా అందరూ కలిసిమెలిసి ఎట్లయితే ఉంటామో అదేవిధంగా రాజకీయ వ్యవస్థ కూడా ఈ విధంగా ఉండాలా, మొత్తం మన రక్షించి కాపాడాలని చెప్పేసి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుతూ మరోసారి ప్రజానికానికి ఈ సంక్రాంతి భోగి. वजीर ज़राअत संगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने ऐलान किया कि हुकूमत आने वाले 3 सालों के दौरान रियासत भर में 20 लाख एकड़ पर पाम ऑयल के बीजों की पैदाइश को यकीनी बनाएगी। रियासत तेलंगाना में पाम ऑयल के दरख्तों की पैदाइश तेज़ी से होती है और इससे आला म्यार का खुर्दनी तेल पैदा हो रहा है। आज आला सतही इजलास में वजीर ज़राअत ने रियासत में ज़राअत के मुतबादिल के तरीक़ों को अपनाने पर गौर के बाद किसानों को मशवरा दिया कि वो धान के बजाय पाम ऑयल की पैदावार पर तवज्जो मरकूज़ करें। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर ज़राअत ने कहा कि बैरूनी ममालिक से खुर्दनी तेल दरामद करने पर मुल्क की फ़ॉरेन करेंसी डिपॉजिट पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है, जो मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। वजीर ज़राअत ने बताया कि मुल्क में खुर्दनी की ज़रूरत की तकमील के लिए 80 लाख एकड़ पर पाम ऑयल की काश्त की ज़रूरत है, मगर इस वक्त 8 लाख एकड़ पर काश्त की जा रही है। हुकूमत तेलंगाना ने 3 साल में 20 लाख एकड़ की काश्त का तखमीना मुकम्मल किया। इसकी तकमील के लिए काश्तकारों को दरख्त लगाने के लिए खोदे जाने वाले गड्ढों को ज़मानत रोज़गार स्कीम से मरबूत करेगा। इसके अलावा बैंकों से कर्ज़ों की फराहमी, पौधों को नुकसानात से बचाने के लिए इंश्योरेंस हुकूमत फराहम करेगी। तेलंगाना की ज़मीन पर 15 से 20 टन फी एकड़ पाम ऑयल पैदा होगा। कारगुजार सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने असम्बली टी जग्गा रेड्डी ने उन्हें मुलाकात के लिए वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से वक्त न देने पर तनखीद करते हुए कहा कि अगर अवामी मसाइल पर नुमाइंदगी के लिए अवामी नुमाइंदों को मुलाकात के लिए वक्त नहीं है तो फिर वजीर आला के पास किस काम के लिए वक्त है। अगर वजीर आला वक्त ना देते हैं तो 17 जनवरी से वजीर आला की सरकारी क़ियामगाह प्रगति भवन पर धरना मुनज़्ज़म करेंगे। आज INN से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सिर्फ रियासत की तरक्की बल्कि रियासत में बसने वाले माशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात को बैंक से मरबूत स्कीम के ज़रिए बिलासूदी क़र्ज़ फराहम करने का वादा करते हुए रियासत भर के बेरोज़गार नौजवानों से दरख्वास्तें तलब की। 3 साल का अरसा गुजर गया, इन दरख्वास्तों पर गौर तक नहीं किया गया। सिर्फ अक़लियतों से ताल्लुक़ रखने वाले 3.5 लाख नौजवानों ने अपनी ज़रूरतों का इजहार करते हुए दरख्वास्तें दाखिल की थीं। तकरीबन 1,10,000 दरख्वास्तें ऐसी हैं जिसमें खुद रोज़गार स्कीमात के लिए सिर्फ 50,000 रुपये तक के कर्ज़ों के लिए दाखिल की गई हैं। मगर अफसोस इस बात का है कि वज़ीर आला तेलंगाना को मुल्क की पहली और सबसे बड़ी फलाह और बहबूद वाली रियासत करार देने के लिए अल्फाज से उलट फेर के ज़रिए अवाम को गुमराह कर रहे हैं। हकीकत ये है कि चंद्रशेखर राव फार्म हाउस और प्रगति भवन के अंदर महसूर होकर रह गए हैं। ज़मीनी हक़ाइक़ से उन्हें कोई वाक़फ़ियत नहीं है। वज़ीर आला तेलंगाना मुल्क के वाहिद वज़ीर आला हैं जो अवाम तो दूर अवामी नुमाइंदों से मुलाकात और मसाइल से वाक़फ़ियत से घबराते हैं। गुज़िश्ता 7 दहाइयों से हर चीफ मिनिस्टर ने मुख्तलिफ उन्वानात पर रास्त अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल को हल किया।
साबिक सदर और साबिक ऑल इंडिया कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और साबिक वजीर एम सत्यनारायण की यौम पैदाइश के मौके पर साबिक रुकन पार्लियामेंट और सीनियर कांग्रेस कायद पूनम प्रभाकर ने करीमनगर में और नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कुमार ने गांधी भवन में सत्यनारायण की फोटो पर फूल मालाएं पेश करने के बाद उनकी खिदमात को जबरदस्त खिराज पेश किया। पूनम प्रभाकर ने बताया कि सत्यनारायण ने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में बहैसियत सदर कांग्रेस और बहैसियत वजीर जो खिदमात अंजाम दी वो नाकाबिले फरामोश हैं। उन्होंने तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि 7 साल गुजर जाने के बावजूद भी वजीर आला के चंद्रशेखर राव अवामुन्नास से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम हैं। उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों से कहा कि वो पार्टी में डिसिप्लिन को बरकरार रखते हुए काम करें। मुस्तकबिल में कांग्रेस पार्टी मरकज और रियासत में बरसर इक़्तिदार आएगी। గారి జయంతి సందర్భంగా వారికి ఘనంగా నివాళులు అర్పిస్తూ వారు ఈ జిల్లాకు చేసిన ఈ తెలంగాణ ప్రాంతాల కోసం పోరాడినటువంటి అంశాలను ఈ సందర్భంగా యువత గుర్తు చేసుకోవాలని సందర్భంగా మనవి చేస్తూ మరి జిల్లా అధికార యంత్రాంగాన్ని మున్సిపల్ పాలక వర్గాన్ని కరీంనగర్ పట్టణంలో ఎక్కడైనా సత్యనారాయణరావు గారి విగ్రహం ఏర్పాటు చేయడానికి స్థలం కేటాయించాలని కోరుతాను। అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో కూడా ఎందుకంటే టీపీఎస్ తెలంగాణ ప్రజా సమితి పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా కానీ లేదా తెలంగాణ ఉద్యమానికి సంబంధించినటువంటి ఒక ఉద్యమకారుడిగా తన ఆకాంక్షను ఎప్పుడు కూడా వెలుగుచ్చినటువంటి సత్యనారాయణరావు గారు తెలంగాణ కోసం చేసినటువంటి సేవల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని హైదరాబాద్ నగరంలో కూడా మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావు గారు కూడా లేఖ రాస్తాను। ఇద్దరు కూడా ఈ లేఖ ద్వారా వారు స్పందించి తప్పకుండా ఎక్కడైనా స్థలం కేటాయించి విగ్రహం ఏర్పాటు చేస్తే ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ వారికి మరొకసారి జిల్లా కాంగ్రెస్ కరీంనగర్ పక్షాన పట్టణ కాంగ్రెస్ కరీంనగర్ పక్షాన వారికి ఘనంగా నివాళులు అర్పిస్తూ వారి ఆశయ స్ఫూర్తికి అనుగుణంగా ముందుకు పోతామని మనం చేస్తూ వ్యక్తిగతంగా నాకు ग्रेटर हैदराबाद की शाहराहें आम दिनों में जाम नजर आती थीं। खास तौर पर अमीरपेट, पंजागुट्टा, कुकटपल्ली, कोंडापुर, माधापुर, गच्चीबौली की शाहराहों और रोड्स पर ट्रैफिक का मसला दरपेश होता था और 1 किलोमीटर का फासला तय करने के लिए 15 से 20 मिनट दरकार होते थे। संक्रांति त्यौहार के मौके पर ऐसे अफराद जो हाईटेक सिटी और दीगर कंपनियों में बरसर इक़्तिदार हैं वो रियासत की तकसीम के बावजूद हैदराबाद में मुकीम रहते हुए काम कर रहे हैं। ये अफराद संक्रांति त्यौहार मनाने के लिए अपने अपने गांव रवाना होने की वजह से हैदराबाद की शाहराहें और रोड जुमा के रोज सुनसान नजर आई, क्योंकि ज़राए के मुताबिक हैदराबाद से 25 लाख अफराद रियासत के अजला के अलावा आंध्र प्रदेश के अजला को रवाना हुए। एक इतला के मुताबिक 20 लाख अफराद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की आरटीसी बसों से रवाना हुए। मजीद अफराद बराए सड़क रवाना हुए होने की वजह से हैदराबाद विजयवाड़ा कौमी शाहराह की टूल गेट पर ट्रैफिक जाम नजर आई, लेकिन हैदराबाद की शाहराहें सुनसान होने की वजह से लोग एक मुकाम से दूसरे मुकाम को आसानी के साथ जा और आ रहे थे। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स ने प्राइवेट ट्रैवल्स की 9 बसें जब्त की। खास खिलाफ वर्जी पर जब्त की गई है। ये बसें जब्त की गई बसें त्यौहार के दौरान गैर कानूनी तौर पर चलाई जा रही थीं। उहदेदारों ने जुमेरात को पेद्दा अंबरपेट आउटर रिंग रोड के करीब मुआयना किया और इन बसों को जब्त कर लिया जिनके पास कोई दुरुस्त दस्तावेजात नहीं थे। जब्त की गई बसें ऑरेंज ट्रैवल्स की हैं। आरटीओ उहदेदारों ने शमशाबाद में भी मुआयना किया और उसूलों की खिलाफ वर्जी करने पर प्राइवेट ट्रैवल की 6 बसों के खिलाफ केसेस दर्ज किए। हुक्काम का कहना है कि अगर गाड़ियां उसूल की खिलाफ वर्जी करती हैं और चलाई जाती हैं तो कार्रवाई की जाएगी। मालूम हुआ कि टीएसआरटीसी ने संक्रांति के लिए 4300 इजाफी बसें चलाई हैं। निस मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर और आरटीसी की विजिलेंस विंग के उहदेदारों से कहा गया है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि इस मुद्दत के दौरान कोई गैर मजाज गाड़ियां ना चलें। संक्रांति के दौरान शहर के अंदर और बाहर के इलाकों में गैर मजाज बसों को रोकने के लिए आरटीए के एहलकार भी हरकत में आ गए हैं। पुलिस ने गुंटूर जिले के वेलदुर्ती मंडल के गुंडलापाड़ू में टीडीपी लीडर तोट्टा चंद्रैया के कत्ल केस में मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। देही एसपी विशाल गन्नी ने बताया कि कल कुल 8 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुलजिमों को जल्द मीडिया के सामने पेश करेगी। 8 मुलजिमीन में चिंता शिवरामಯ್య, चिंता एलमनाडु कोटैया, साई रघुरामಯ್య और सन्नी रामा कोटेश्वर राव, चिंता श्रीनिवास राव, तोट्टा अंजनेलु, तोट्टा सेवन नारायण और चिंता
आदि नारायण को गिरफ्तार किया है। इस केस का मरकजी मुलजिम चिंता शिवरामैया बताया जाता है। मालूम है कि चंद्रैया पर नामालूम हमलावरों ने चाकू और कुल्हाड़ियों से हमला किया जब वो कल गुंडाला पाड़ू के गांव के मरकज में बैठे थे। चंद्रैया को कत्ल करने के बाद गुंडे फरार हो गए। इस वाक़े पर पार्टी सरबराह चंद्रबाबू नायडू बरहम है। उन्होंने कहा कि ये एक सियासी कत्ल है। चंद्रबाबू नाराज थे कि हुकूमत के खिलाफ लड़ने वालों को कत्ल और गारत की सियासत से डराया जा रहा है। चंद्रबाबू जो चंद्रैया की आखिरी रसूमात में मौजूद थे ने मुतवफ़ी के लवाहीन को टीडीपी की हिमायत का यकीन दिलाया और 25 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। जुमेरात की रात हुमायूं नगर के फसलानसर में नामालूम हमलावरों ने एक नौजवान को हलाक कर दिया। मुतवफ़िक की शनाख्त भोला नगर के साकिन सोहेल खादरी 25 साल के तौर पर हुई है। पुलिस को शुबा है कि सोहेल का हमलावरों से झगड़ा होने का पुलिस को शुबा है, जिन्होंने गुस्से में इस नौजवान पर छुरियों से हमला किया। शदीद जख्मी सुहेल मौके पर ही दम तोड़ गया। राहगीर जिन्होंने मकतूल को खून में लुत्फुत देखकर पुलिस को इत्तला दी, जिसने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू की। हुमायूं नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि हमलावर और मकतूल के दरमियान साबिका दुश्मनी कत्ल की वजह बनी होगी। तफ्तीश जारी है। और भाई यहाँ तक नहीं है खून, 5 डब्बे वालों का इसी चले और लाइट मार लेते अपना वहाँ तक है खून। नहीं छुआ जी गाड़ी का उस्मानिया में ఓకే ఓకే నేను వచ్చిన లైట్ వాడు साबिक मेयर हैदराबाद माजिद हुसैन ने कमिश्नर पुलिस से मुतालबा किया कि वो आज फसलानसर में बेकसूर मोहम्मद सुहेल खादी के कातिलों को फील फोर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करें और ऐसी सज़ा दिलाएं कि दूसरे इससे इस तरह हरकत से इज्तनाब कर सकें। मोहम्मद सुहेल खादरी के कत्ल पर आज अहलियाने फसलानसर मासाब टैंक पर जमा होकर ज़बरदस्त एहतजाज करते हुए सुहेल के कातिलों को गिरफ्तार करने और कैफर किरदार पहुँचाने का मुतालबा किया। इस मौके पर साबिक मेयर हैदराबाद माजिद हुसैन ने एहतजाज में शामिल होते हुए सबसे पहले ख़वातीन को अपने घरों को वापस करते हुए खुद धरना देते हुए सड़क पर बैठ गए। असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस ने कमिश्नर पुलिस की जानिब से माजिद हुसैन और एहतजाजियों को तयखुन दिया कि अंदरून 24 घंटे कातिलों को गिरफ्तार करते हुए सख्त कार्रवाई की जाएगी और अंदरून 2 माह ट्रायल को मुकम्मल किया जाएगा। माजिद हुसैन ने मीडिया से बात करते हुए कत्ल की बहमाना हरकत की मजम्मत की और पुलिस से फौरी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। आप जानते हो आप पे कोविड के केसेस बुक करना है, प्लीज करिए, जो करना है करिए, मेरे को कोई फिक्र नहीं है। कोई मेरे को एक बार उन्होंने आगे भोला नगर कट्टे के करीब
जो बंजारा हिल्स और हिमायत नगर का पीएस का बॉर्डर आता है, वहाँ पे एक 26 साल नौजवान मोहम्मद सोहेल का बेदर्दनी तौर पे कत्ल किया गया और उसमें जो मुलव्विस अफराद है वो अभी फरारी में है। तो आज जब यहाँ पे फैमिली वालों ने यहाँ पे रोड पे ठहर कर उनके एहतजाज किया तो हम भी उनके दरमियान में आए और यहाँ पे जब हमने एहतजाज किया तो यहाँ के जो एसीपी साहब है और डीसीपी साहब यहाँ पे जो है उन्होंने हमसे बात की और एमएलए साहब से ये बात की और हमें ये मुतमईन दी कि जल्द से जल्द इन तमाम को अरेस्ट किया जाएगा और इंशाअल्लाह ताला इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अफसोस की बात यह है कि ये वही मुकाम पे मर्डर हुआ जहाँ पे करीबन 8 साल महीने पहले एक और एक मर्डर हुआ था और वहाँ पे एहतियात के तौर पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ही जानिब से आज सदर मजलिस की दिलचस्पी से वहाँ पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने ज़ाती अखराजात से एक आउटपोस्ट बनाया था और कैमरेज वहाँ पे इंस्टॉल किए थे और उसके इंस्टॉलेशन से ये हुआ कि वो तमाम जो कल्प्रिट्स है उन्होंने ये जो घिनौना मर्डर अंजाम दिया वो तमाम कैमरे में कैद हुआ और तमाम लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं और पुलिस महकमे ने हमसे ये वादा लिया है कि आज शाम तक इंशाअल्लाह पूरों को गिरफ्तार करेंगे और इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं आपके ज़रिए से यहाँ के लोगों को भी मुतमईन दिलाना चाहता हूँ कि ऐसे चंद लोगों से ये गुंडों से डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं। इंशाअल्लाह ताला इनका मुकाबला हम खुद करेंगे। आज इन्होंने एक नौजवान को कल रात में कत्ल किया पर इनको भी हम चैन से बैठने नहीं देंगे और आपके ज़रिए से उनको भी पैगाम देता हूँ जो हिजड़ों के तौर पर 5-5, 6-6 मिलकर एक मासूमों की जो जान लेते हैं और उनके घर के बच्चों को यतीम करते। दिल्ली के मसरूफ़ तरीन इलाके गाजीपुर की फूल मंडी में एक बम दस्तयाब हुआ। मुकामी ताजिरों ने मुश्तबा हालत में पड़े एक बैग को देखने के बाद उसकी इत्तला पुलिस को दी और पुलिस फौरी तौर पर वहां पहुंच गई और पुलिस ने बम स्क्वाड की मदद से बैग में रखी अशिया का पता चलाया जिसमें IED बम पाया गया। पुलिस ने NSG और फायर इंजन को मौके पर तलब कर लिया और पूरे इलाके को खाली करवा दिया। पुलिस ने बम डिस्पोजल स्क्वाड और NSG फोर्स की मदद से बैग को एक वीरान इलाके में मुंतकिल किया और उसमें मौजूद धमाका खेज मादे को उड़ा दिया। बम का बर वक्त पता लगाने से बड़ी तबाही टल गई वरना कई जानें ज़ाय हो सकती थी। दिल्ली स्पेशल पुलिस ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बम केस ने नस्ब किया उसकी तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। कर्नाटक में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 7 नौजवान हलाक हो गए। ये हादसा जुमा को अलग सुबह देवनागरी के करीब तेज़ रफ्तार कार के डिवाइडर से टकरा जाने के बाद पेश आया। मुतासरीन बेंगलुरु से हौसापेट जा रहे थे। इनमें से 6 मौके पर ही हलाक हो गए और एक अस्पताल ले जाने के दौरान इलाज से जख्मों से जाबन न हो सका। मरने वालों की उम्रें 18 से 22 साल के दरमियान बताई गई हैं। मरने वालों का ताल्लुक यादगीर, विजयपुरा और विजयनगर से बताया गया है। हादसा इतना खौफनाक था कि इंडिका कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और कार में नाशें फंस गई थी। उन्हें बाहर निकालने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया गया। एक वाक़या नंदियाल में पेश आया जब एक खातून जिसके एक मर्द के साथ गैर अज़दवाजी ताल्लुकात हैं ने अपने शौहर पर कत्ल की कोशिश की। 2 टाउन SI मुरली कृष्णा के मुताबिक प्रियंका नगर स्ट्रीट के ईश्वर रेड्डी की शादी 14 साल कबल शिवा पार्वती से हुई थी। ईश्वर रेड्डी जो छोटे कारोबार कर रहे थे उन पर बहुत ज़्यादा कर्ज था। इस पस मंजर में वो पिछले 5 सालों से कर्जदारों से फरार हो रहा था और कभी कभार आता था और बगैर बताए घर से चला भी जाता था। इसी सिलसिले के दौरान उसी इलाके के शिवा पार्वती और नागराज के दरमियान गैर अज़दवाजी ताल्लुकात कायम हो गए। बुध की रात जब ईश्वर रेड्डी घर पहुंचा तो बीवी को दूसरे आदमी के साथ देखकर उसके साथ झगड़ा किया। इस दौरान नागराज ने ईश्वर रेड्डी को मारने के लिए अपने 3 दोस्तों को तलब किया और शिवा पार्वती के साथ मिलकर उस पर लाठियों से अंधाधुंध हमला किया। मुकामी लोगों के पहुंचने पर मुलजिम वहां से फरार हो गया जबकि ईश्वर रेड्डी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बरामदशुदा मुतासिर ने जुमेरात को पुलिस में अपनी बीवी शिवा पार्वती और नागराज के साथ 3 दीगर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। उसे तक पुलिस ने इक़दाम खुदकशी का मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया है।
اس کے ساتھ ہی یہ خبریں یہیں ختم ہوئیں. اب ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے INN چینل. خدا حافظ.